Hello everyone, welcome to EduTap. When it comes to PFRDA Grade A examination, finance can be a scoring subject, but the problem is that students often find it too technical or too lengthy. So as a part of this video, we are going to talk about a detailed strategy with respect to finance. We will also talk about important sources and important priority topics that you must cover as a part of this examination. And this video is going to be helpful for those aspirants who have actively started their PFRDA Grade A preparation. Now, before we discuss all these things, here's a small announcement for all of you. We know that syllabus play a very important role no matter what exam you are preparing for, including PFRDA Grade A. It acts as a guiding light. So what you can do in order to download a subject-wise decoded syllabus with respect to PFRDA Grade A, you can go to the link that is provided in the description box. And from there, you can download this ebook. Fine, that is going to help you to basically optimize your strategy. Now coming back to the video, let us talk about the strategy. So before we directly delve into greater details, first of all let us talk about the exam structure with respect to PFRDA Grade A. That will give you a better clarity regarding the approach. So first of all, we know that the exam is divided into phase 1 and phase 2. If we talk about phase 1 has two papers, paper 1 and paper 2. Fine, and both papers carry equal marks weightage, that is of 100 marks. If we talk about paper 1 includes English, quants, reasoning and GA, whereas paper 2 belongs to general stream. Fine, under general stream where is finance, so here we have finance, from where I would say if we see the PYQs, 6 to 7 questions have been asked. Fine, with respect to phase 1. Now if we talk about phase 2, in phase 2 also you have two papers, paper 1 and paper 2. Over here paper 1 is English and is purely descriptive in nature, whereas if we talk about paper 2, it is objective type paper. Fine, both have 100 marks weightage. And if we talk about the finance, you can see finance is there as a part of the paper 2. And if we see the previous year questions, I would say out of 50 questions, you can say 5 to 6 questions are asked with respect to finance. And I would say I would show you the PYQs also, and from there you will come to know that whether what is the nature of the question, is it easy, moderate or difficult. We will talk about all those factors as a part of it. Now let us talk about the syllabus. Fine, but before we discuss that, let me tell you a important message that those students who are going to cover or study finance for the first time, please do not get scared, because this is not the finance that finance students study during their graduation or the post graduation days. I would say this is not the core finance. This is a very general version of finance, and you can interpret it through this syllabus only. That the first topic is role and functions of regulatory bodies, where you will talk about the regulatory bodies like RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI, different type of regulated bodies and their functions. And the questions are also very much straightforward. They will provide you a function and they will ask you that which regulatory body performs this specific function. The second is financial market. Here we have primary and secondary market, and I would say this is the lengthiest topic as far as the finance is concerned. And are the questions asked from this topic? The answer is yes. And which could be the priority areas that you can go for when it comes to primary and secondary market? The answer is bond and equity. ठीक है, तो बॉन्ड एंड इक्विटी को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना, फॉरेक्स को आप मिनिमम इतना कर लो कि इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई क्वेश्चन दिखाई भी नहीं दिया, तो फॉरेक्स से थोड़ा कम भी करोगे चलेगा. एंड मनी मार्केट तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पर जैसे कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, देन आई वुड से ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेना कि इन चीज़ों की डेफिनेशन क्या होती है. यू शुड नो दैट बिकॉज डिटेल्ड क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम द मनी मार्केट, बट यू शुड हैव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से गुड अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंड इक्विटी मार्केट. फाइन, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. द नेक्स्ट इज जनरल टॉपिक्स. हियर वी हैव डेरिवेटिव्स. तो यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, और क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं वो बेसिक टाइप ही होते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते डेरिवेटिव्स में से. सो your preparation has to be optimized accordingly. Next is recent development in financial sector. ये करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है. द थर्ड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. आई वुड से दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है. हर साल 1 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. पेपर 1 में या तो फेज 1 में क्वेश्चन आ जाएंगे या तो फेज 2 में क्वेश्चन आ जाएगा. कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है, बट क्वेश्चन आता हमेशा है. और ये टॉपिक ऐसा है जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है. कम इन्वेस्टमेंट के साथ
आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं. सो यू मस्ट नॉट स्किप दिस टाइप ऑफ टॉपिक. बहुत ही कम टाइम चाहिए इसको कवर करने के लिए, एंड you have to cover it. I would say the length and breadth of this topic. You should know that what are the initiatives that have been taken with respect to financial inclusion, fine, by the government, and you should know certain type of entities like who are banking correspondents and such, and the banking correspondent certificate that is there. Then the important schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, then what is priority sector lending. ये जितनी जितनी चीज़ें हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. द नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये जो एरिया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह छोड़ दो, बाद में बात करेंगे कि इसको कितनी एक्सटेंड तक करना है, व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द प्रायोरिटी एरियाज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. बट आई वुड से बेस्ड ऑन द PYQs दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. इट ऑल्सो इंक्लूड GST, फाइनेंस कमीशन, फिजिकल पॉलिसी एंड FRBM एक्ट. इसमें जो FRBM एक्ट और GST है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, ठीक है. GST में से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड FRBM एक्ट में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं. और उसके अलावा फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जिसको करने में हार्डली आधा दिन लगेगा, ठीक है. यू हैव टू स्टडी द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यू हैव टू कवर इट. एंड द फाइनेंस कमीशन, यू शुड नो दैट व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमीशन, हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन मेंबर्स, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द फाइनेंस कमीशन मेंबर्स, एंड इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन. And apart from that, you also have to study the most recent recommendations that have been given with respect to फाइनेंस कमीशन. तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी, एंड बहुत ही डुएबल टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, बट इसमें से क्वेश्चन निकल जाते हैं, और क्वेश्चन आ गया तो इजीली आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. यू कैन गेट द मार्क्स. देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं, विच टैक्सेस आर अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेस. यू शुड नो सम technical terms, fine. You should know about GST composition scheme, you should know about e-way bills, what is e-way bills, reverse charge mechanism, such type of things you should know with respect to GST and direct and indirect taxes as a whole topic, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. लास्टली वी हैव इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को तो मैं बोलूँगा किसी हालत में छोड़ना नहीं है. क्यों? क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरह एक ऐसा टॉपिक है जो छोटा टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कोई ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. तो आराम से आप यहाँ से अपने कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हो. सो आई वुड से यू शुड कवर इट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस. तो आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड स्टूडेंट ना कर पाए, ठीक है. तो अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन कर रहे हो, सो इट शुड नॉट बी अ बिग डील फॉर यू. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Now the next thing is, let us talk about the difficulty level also. So here we will see the previous year question, and when we talk about the phase 1, ठीक है. तो phase 1 में what I have observed is that there are 3 type of questions. The first is numerical type questions. The second is basically current affair based. ये बहुत ही कम आते हैं और numerical भी बहुत कम है, ठीक है. और जो मेन जो क्वेश्चन आता है आपका वो होता है स्टैटिक. और स्टैटिक ही वो ऐसी चीज़ है जो आपको प्राइमरली प्रिपेयर करनी है. स्टैटिक मीन्स व्हाट? योर सिलेबस ओनली. और स्टैटिक से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फेज 1 हो, फेज 2 हो, और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा भी. देन यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी, बट दिस शुड बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से, प्रायोरिटी एरियाज. उसके बाद न्यूमेरिकल्स. द थिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स इज दैट दो स्टूडेंट्स who are going to study finance for the first time, please do not get into this numericals and all these things as a priority thing, ठीक है. लास्ट में टाइम मिला तो देख लेना, नहीं मिला तो रहने देना फाइनेंस के न्यूमेरिकल्स, ठीक है. ज़्यादा ज़्यादा एक आधा क्वेश्चन आता है और कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है. लेकिन जो स्टूडेंट्स फाइनेंस ऑलरेडी जानते हैं, जो किसी और एग्जाम के लिए पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा न्यूमेरिकल को देख सकते हैं जस्ट टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है. यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स. आई विल शो यू व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट अफेयर, कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट करंट अफेयर है तो वो आपको पढ़ना है. ज़्यादा करंट अफेयर बेस्ड नहीं आता है, बट बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है. जैसे फाइनेंस कमीशन की कोई नई रिकमेंडेशन आ गई तो वो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो पूछ लेंगे. कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया, लैंडमार्क इनिशिएटिव आ गया कोई, एंड इट इज़ अलाइनिंग विद योर सिलेबस, वो ले लेंगे. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ मंथली मैगजीन एज अ पार्ट ऑफ योर GA ऑल्सो, क्योंकि GA भी तो आप पढ़ोगे ना, जनरल अवेयरनेस पेपर 1 में, तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ का करंट अफेयर भी कवर कर ही देगी. तो बहुत ही कोई स्पेशल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. Otherwise, I would say the time is very much limited, so you should know where you have to invest your energy. Fine. So accordingly you can do that. Now let me erase the ink and let us see the type of questions that are there. So the first is, you can see this is the numerical. So आपसे पूछ लिया था कि बताओ
calculate the weighted average earning per share, and they had given you the information. And I would say this was a tough numerical. आसान नहीं था इसे सॉल्व करना, एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस में आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट अच्छे से पढ़ा हो, आपको इक्विटी मार्केट अच्छा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। क्या पता आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, एंड आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकल, और वो भी उन लोगों की जिन्होंने फाइनेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, और जो नया शुरू कर रहे हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा ये चीज़ें करने का। आई कैन अश्योर यू डैट, बट टाइम मिल जाए तो तब जाके देखना भी होगा, तो लास्ट में देखना, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इस तरह का करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर 2022 में हुआ था। 2022 में फाइनेंस कमीशन के लिए रिकमेंडेशन आई थी 2021 टू 22 वाली, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ व्हाट इज अ परसेंटेज दैट हैज बीन असाइन टू इनकम डिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, तो कोई भी सिंसियर एस्पिरेंट होता तो उसने फाइनेंस कमीशन पढ़ा ही होता, और ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन में ही आएगा कि किस किस आई वुड से कैटेगरी को या किस एरिया को कितना परसेंटेज एलोकेट फंड एलोकेशन हुई है एज अ पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन। सो बेसिकली यू वुड हैव कवर्ड दैट एंड यू वुड हैव बीन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह के करंट अफेयर आते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, और अगर आ भी जाता है बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको कोई रिग्रेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके लिए मुश्किल है तो बाकियों के लिए भी मुश्किल होगा। आपको सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करना है जो आप टैकल कर सकते हो और जो डूएबल है, विच इज नथिंग बट प्राइमरीली द स्टैटिक पोर्शन। फाइन, आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट वन द क्वेश्चन So the next one, the question has been asked from inflation. So you can see a straightforward question has been asked, and that's why I told you that inflation is a type of topic where in minimum investment you can get the maximum returns. Fine, so बहुत scoring topic है, so at any point of time please do not skip inflation if you are going to study it for the first time. So if your concepts are clear, you will be in a comfortable position to answer these type of questions. Then you can see financial inclusion में से question है, GST में से question आया हुआ है, it is a part of your syllabus, ठीक है। Inverted relative structure में से question आया हुआ है। Then you can see कि FRBM एक्ट में से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, अगर आपने FRBM एक्ट एक बेसिक तरीके से भी किया है तो वो ये चीज़ आप करोगे ही करोगे, एस्केप क्लॉज आप पढ़ोगे FRBM एक्ट में, ठीक है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दैट। Apart from that, you can see it over here that again another question with respect to primary and secondary market with respect to cash management bill। और मैंने आपको इसीलिए कहा कि जो आपको मनी मार्केट पढ़ना है, जो मनी मार्केट है आपका, उसमें भी सिर्फ आपको जो मनी मार्केट के कंपोनेंट है बस उनके बारे में पढ़ना है कि किसका क्या टेन्योर है, कैश मैनेजमेंट बिल का क्या मतलब होता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल का क्या मतलब होता है, ट्रेजरी बिल का क्या टेन्योर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, एंड आई वुड से दैट शुड सफाइज विद रिस्पेक्ट टू योर मनी मार्केट। बट जो आपका इक्विटी एंड डेट मार्केट है वो थोड़ा अच्छे से कर लेना बस एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं रिगार्डिंग फेज 2, और मैं ये बोलूंगा कि फेज 2 के क्वेश्चन मुझे फेज 1 से थोड़े ज्यादा इजी लगे। आई डोंट नो व्हाई, बट इट वाज इजियर एज कंपेयर टू फेज 1। यू कैन सी इट ओवर हियर विद द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिगार्डिंग IPO। देन अगेन अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी बॉडी, कि बताओ अनलिस्टेड कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, और आप थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते थे। द नेक्स्ट इज विच इज रिगार्डिंग द डेरिवेटिव्स, और मैंने कहा था कि डेरिवेटिव्स में बेसिक और डेरिवेटिव्स दिए, तो क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है रिगार्डिंग हेजिंग, एंड इफ यू हैव कवर्ड दीज डेरिवेटिव्स and you should be in a position to answer this question. Now miscellaneous question has been asked, again inflation का एक और question है, तो so this is I would say is a difficulty level with respect to the paper। और आप देख सकते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो है easy to moderate में, ठीक है, easy to moderate है। किसी भी हालत में ये कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो भी इसी टाइम पे होनी चाहिए, स्पेशली कीपिंग इन माइंड दैट द टाइम इज वेरी मच लिमिटेड। सो व्हाट यू कैन डू, हाउ यू कैन कवर दिस टॉपिक्स, व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक नंबर 1 को निपटा दो, ठीक है, छोटा टॉपिक है, सबसे पहले 1A को खत्म कर दो, विच इज रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सभी रेगुलेटरी बॉडीज के फंक्शन पढ़ लो, व्हाट इज देयर रोल, यू नीड टू गेट द अंडरस्टैंडिंग सो दैट इफ द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड इजीली यू आर एबल टू स्कोर। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लंबा टॉपिक है, तो इस पर हम बाद में आएंगे कि इसको कब करने का सही टाइम है, क्योंकि इसके बाद आप आओगे कहाँ पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ये आपका सेकंड टॉपिक होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद आप आओगे आई वुड से
इन्फ्लेशन में, ये आपका थर्ड टॉपिक होगा। फोर्थ टॉपिक आपका होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर आपको कैसे कवर करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टडी जीएसटी, द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू जीएसटी, किया जीएसटी क्या होता है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसके बाद ईवी बिल क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, इन कंसेप्ट्स को पढ़ना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन वो पूछते नहीं है, और अगर पूछ भी ले तो मुझे लगता है वो फिर बहुत ही, या तो बहुत इजी होगा क्वेश्चन या तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इजी हुआ तो सब लोग कर लेंगे, डिफिकल्ट होगा तो किसी को भी नहीं आता होगा, या फिर मैक्सिमम लोग जो अटेम्प्ट करेंगे उनका गलत ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जब आपका टाइम कम होता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए जो आप एग्जाम में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ो कि यार फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, उनके मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनका टेन्योर क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट रिसेंट फाइनेंस कमीशन है रिकमेंडेशन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेना कि किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया, ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा देखना होगा। फिजिकल पॉलिसी आई वुड से कुछ घंटों का ही टॉपिक है, इसमें तो एक दिन भी नहीं लगता है। टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी पढ़ना है कि टैक्सेशन को एंड स्पेंडिंग को गवर्नमेंट यूज करके किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सो आई वुड से छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन आ गया तो किसी भी हिसाब से आप अटेम्प्ट कर ही लोगे अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन से टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में आते हैं और कौन से टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए किस टैक्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स इज व्हाट टाइप ऑफ टैक्स, इज इट अ डायरेक्ट टैक्स और इज इट एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको पता होना चाहिए किस में कैटेगराइज होता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एंजल टैक्स क्या होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंजल टैक्स बंद कर दिया है इन द लास्ट बजट, लास्ट टू लास्ट बजट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड दैट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू एंटर अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, बट क्योंकि नेचर क्वेश्चन का इसी तरह है तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी के साथ अलाइन होनी चाहिए। फिर आपके पास एफआरबीएम एक्ट है, बहुत ही छोटा एक्ट है ये। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत डिटेल में नहीं, आपको रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट का टारगेट पता होना चाहिए। एनकेसिंग कमेटी के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा वो देख लेना। एस्केप क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और डिटेल इसमें है भी नहीं सच बोलूँ तो, क्योंकि टॉपिक का स्कोप ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरह के क्वेश्चन इसमें फॉर्म नहीं किए जा सकते। तो इन टॉपिक्स को आपने करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके, इसके बाद जब आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कर लिया, फिर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड बेसिक और डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप बड़े टॉपिक्स में इतना टाइम लगा दो कि जो छोटे टॉपिक है जहां से स्कोर लिया जा सकता है उन्हें आप छोड़ दो उस चक्कर में, क्योंकि बाद में एग्जाम टाइम जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो मतलब सॉरी कम होता जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टॉपिक्स दैट आर चेरी पिक टॉपिक्स यू हैव टू कवर देम ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। उसके बाद जाओ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में। अब यहाँ पर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बॉन्ड एंड इक्विटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले तो इसको निपटा दो। मनी मार्केट में बेसिक्स देखो, जैसा मैंने आपको बताया, जो मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट्स है उनको देखो कि क्या है इंस्ट्रूमेंट का मतलब, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका टेन्योर क्या है। ठीक है, और क्या पर्पस है उसका, थोड़ा ये चीज समझो। फॉरेक्स को बहुत ही लिमिटेड करना, ज्यादा टाइम बिल्कुल मत इन्वेस्ट करना यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा पढ़ना होगा तो डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये थोड़ा कंसेप्ट देख लेना। ठीक है, और जो थोड़ी बेसिक डिटेल्स है वो देख लेना, ताकि कम से कम इजी क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन फंस गया तो वो आप ना छोड़ो। ठीक है, मुश्किल आ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम तो वैसे भी लिमिटेड है। बट अगर आपने ऑलरेडी फाइनेंस पढ़ा है तो मैं बोलूंगा कि फिर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। बट आप फाइनेंस अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे, इस प्रायोरिटी में टॉपिक्स को कवर करोगे, तो आप आई वुड से मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लोगे। ठीक है, एग्जाम के डिमांड के हिसाब से। उसके बाद एक टॉपिक आपका ऐसा है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अगर टाइम मिलता है तो करना, नहीं मिलता है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थोड़ा थोड़ा देख लेना जो उसके मॉडल है। फॉर एग्जांपल सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉडल है इसका हैम मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, थोड़ा इसके बारे में देख लेना। बाकी जो बॉट बूट एंड बूस्ट सिस्टम है वो सब चीज़ें कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। ठीक है, बॉट में क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रेड, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तो उसके नाम में ही सारी चीज़ें हैं, यू कैन इंटरप्रेट इट इजीली। तो वो चीज़ें करनी है आपको। और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस टाइम मिलता है तो देख लेना, बेसिक चीज़ें करना, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, सो दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। बट मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको कौन से टॉपिक करने हैं और बाद में टाइम मिलेगा तब कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट छोड़ के मत जाना प्लीज, जस्ट बिकॉज मैंने वो लास्ट में बताया, लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा लेंदी है। और अगर कुछ ना मिले तो बॉन्ड एंड इक्विटी को थोड़ा टाइम लगा के, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कर लेना, ताकि क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आपके आएंगे और फंस जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। उसके बाद द सोर्सेज दैट यू कैन रेफर टू as a part of your preparation strategy. So these are the books if you are doing self study. So these are the books, Indian Economy and Indian Financial System and Principles and Practices of Banking. ठीक है, तो क्या आपको ये पूरी बुक पढ़नी है? बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, बिल्कुल भी पूरी बुक नहीं पढ़नी है प्लीज। आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, कौन से टॉपिक है वो, ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए। तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हो। यूट्यूब पे आपकी जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, इट विल हेल्प यू टू, आई वुड से, अंडरस्टैंड थिंग्स। बट कोशिश करना है कि प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में ना हो। इट शुड बी ऑर्गेनाइज, इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू आर डूइंग इट अकॉर्डिंगली। नाउ that is it from my end. And if there is any area that I have not touched, if you think that certain type of query or doubt has remained unresolved, so what you can do, you can write it in the comment box. ठीक है, comment box में लिख देना, I will go through the comments and I will answer your queries, all your doubts I'm going to answer. And that is it from my end. And before I end the session, now let me show you that basically how EduTap can help you as a part of your preparation. So basically you have to go to a website which is edutap.in. So यहाँ पर आपको courses खोलने हैं and you have to open this PFRDA grade A courses. And over here you can see, that we provide two types of courses. The first is the gold course and the second one is the silver course. ठीक है, तो if you talk about gold course, basically the gold course is for, it includes the preparation for both phase 1 as well as for phase 2. The silver course includes preparation for phase 2 only. And as a part of it you can get access to live classes, concept classes, you can get access to chapter wise test. Fine, so all these type of things will be there with as a part of this silver course and the gold course. But the only difference is silver course includes study material for phase 2 only, whereas gold for both phase 1 and phase 2. Apart from that, if you want to be part of the crash course also, fine, so you can go through that too. So in the crash course we will be conducting the live classes, and the course announcement has already been made official. You can go to our YouTube channel and you can see it over there, rest of the details. And if you're somebody who is purchasing the gold and the silver course, then the crash course is already a part of it, so you don't have to purchase it separately. Crash course is only for those students who don't want to go for the silver course and the gold course, because in the crash course the pre-recorded classes are not going to be there, fine, which is the concept classes. So that is it from my end. Thank you so much and all the best.